ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ PPSC, PCS, ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ, PIB, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਡੇਲੀ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ PSCB ਕਲਰਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ PCS ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਡੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਰਡ ਬੁੱਧਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਟ ਸਰਮਨ ਪਹਿਲੇ 5 ਡਿਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਨਾਥ ਵਾਰਾਣਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਲਰਜੀ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਕੇਅਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਵਿਦ COVID-19। ਨੈਕਸਟ ਹੈ DRDO ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ COVID-19 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 10,000 ਬੈੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ COVID-19 ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ DRDO ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ICU ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰਨਲ B ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ICU ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਐਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਈਕਿੰਗ ਵਨ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੰਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਲਵੇ ਹੈ, HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਲਵੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟ ਹੈ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਟਾਕਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ICU ਗ੍ਰੇਡ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ।
2 ਵਾਰ ओलंपिक चैंपीयन रह चुके हैं, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनेगा। और इन्हों सुपर डैन कहा जाता सी, निकनेम इन्हों सुपर डैन के नाम तो जानिया जाता सी। नेक्स्ट है MP मध्य प्रदेश द्वारा इंतज़ार आपका कैंपेन लॉन्च किया गया। बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते अगर आप गल करिए टूरिज़म की, टूरिज़म एक ऐसा सैक्टर है जिसनों काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया कोविड-19 दौरान, तो इस सैक्टर को प्रमोट करने के लिए इंतज़ार आपका कैंपेन लॉन्च किया गया MP गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा एक MOU साइन किया गया बेसिकली महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाल। अगर आप गल करिए इंडियन गवर्नमेंट के नाल और इंडिया के विच भी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाल, किस दे लिए? बिजनेस के लिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लैवल टेक्निकल कमेटी। गवर्नमेंट द्वारा एक हाई लैवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई। बेसिकली किस दे लिए बनाई गई? ये पब्लिक हैल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई कोविड-19 के लिए जी गाइडलाइनस ने उन्होंने एक बार रिव्यू करने के लिए, जिसके हैड अपॉइंट किए गए VK पॉल उस कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए। फॉर्मर RBI गवर्नर, RBI के पुराने गवर्नर उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक नू रिलीज़ किया गया इन्होंने द्वारा, फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा। नेक्स्ट है USA स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। USA की जी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम की है नासा द्वारा एक वियरेबल पल्स, बेसिकली कह सकते हैं एक नैकलेस डेवलप किया गया, जिसके अंडर की होएगा कि अगर अपने जोड़े हैंड्स ने अगर आप उसनू फेस के उत्ते टच करने की कोशिश करांगे तो वह आपको एक अलर्ट जारी करेगा, एक वाइब्रेशन के थ्रू एक अलर्ट जारी करेगा। इसनू किस द्वारा डेवलप किया गया? नासा द्वारा ही रिसेंटली मैरी डब्ल्यू जैक्सन इन्हों की जी वाशिंगटन DC के विच बिल्डिंग है उसका नाम चेंज करके मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम के उत्ते रखा गया सी। NLC इंडिया ने पार्टनरशिप की कोल इंडिया के नाल NLC इंडिया ने पार्टनरशिप की किस दे लिए? फॉर अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया गया टू डेवलप सोशल और थर्मल पावर एसेट्स नू डेवलप करने के लिए इस एग्रीमेंट नू साइन किया गया। कोलकाता के विच हैडक्वार्टर है और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के हैड ने। कोलकाता के विच प्रमोद अग्रवाल हैड ने। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन, इसने पार्टनरशिप की फेसबुक के नाल। CBSE ने फेसबुक के नाल पार्टनरशिप की टू लॉन्च फ्री और कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम किस दे लिए? टीचर और स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया CBSE द्वारा। 1962 के विच CBSE बनाया गया सी। न्यू दिल्ली के विच हैडक्वार्टर है और मनोज आहूजा बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। मनोज आहूजा CBSE के डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है रिलायंस द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जियो मीट लॉन्च की गई सी। जियो मीट नाम की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन रिलायंस द्वारा लॉन्च की गई सी। नैक्सट आप डिस्कस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स। डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स आप डेली डिस्कस कर रहे हैं, 4 स्टेट डिस्कस कर रहे हैं ताकि जोड़े चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ने अपने ईजिली याद होन और आप एक सिंगल लाइन के याद रखने ने। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भूपेश बघेल रिसेंटली अपॉइंटेड ने और अनुसुईया उइके भी रिसेंटली अपॉइंटेड ने गवर्नर ने छत्तीसगढ़ के। गोवा प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर ने। मनोहर पारीकर की गल कर लें। मनोहर पारीकर गोवा के चीफ मिनिस्टर होंगे सी, इन्हों की डैथ हो गई सी। इन्हों तो बाद प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर बनाए गए सी। मनोहर पारीकर के नाम के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई सी। ये आप इत्थे डिस्कस कर रहे हैं। एक बुक रिलीज़ की गई सी, कमेंट बॉक्स के उस बुक का नाम दसने। मनोहर पारीकर के नाम के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई सी, कमेंट बॉक्स के उस बुक का नाम दसना प्लस ऑथर का नाम दसना। सत्यपाल मलिक गोवा के
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਔਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 2 ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਚਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर ने विजय रूपानी और गवर्नर ने आचार्य देवव्रत। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर दोबारा अपॉइंट किए गए सी। मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली इलैक्शनस होए सी हरियाणा दे विच और सत्यादेव नारायण आर्या इत्थे दे गवर्नर ने। सत्यादेव नारायण आर्या इत्थे दे गवर्नर ने। नैक्सट आप अज दे फर्स्ट क्वेश्चन दे वाल चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया का लार्जेस्ट 750 मेगावाट सोलर प्लांट, एशिया का लार्जेस्ट, इंडिया का ही नहीं एशिया का भी लार्जेस्ट सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनों इनोग्रेट किया जाएगा। कित्थे लगाया जा रहा है इसनों लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश के विच। MP दे विच इंडिया का लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बेसिकली MP दे रेवा डिस्ट्रिक्ट दे विच, MP दे रेवा डिस्ट्रिक्ट दे विच याद रखना। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए एक न्यूज़ होर डिस्कस कर लेने इत्थे महाराष्ट्र के रिलेटेड। महाराष्ट्र ने की करिया एक पोर्टल लॉन्च किया महा जॉब्स नाम का पोर्टल लॉन्च किया है यूथ नू जॉब्स प्रोवाइड करवाने के लिए। अगर आप गल करिए जॉबलैस यूथ है, अनएम्पलॉयड यूथ है इस टाइम कोविड-19 के दौरान, तो उन्होंने जॉब्स प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने स्किल के अनुसार महा जॉब्स नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गौरमेंट द्वारा। इस तो इलावा कुछ होर स्कीम्स अगर आप डिस्कस करिए, सब तो पहले महाराष्ट्र की महापरवान स्कीम लॉन्च की गई सी महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र के पलगढ़ पुलिस द्वारा, पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस द्वारा विश्वास अभियान लॉन्च किया गया सी। उड़ीसा की स्कीम्स डिस्कस कर लेने। कालिया पीठा अम्मा घरे सुनेत्र समृद्धि, कालिया पीठा अम्मा घरे सुनेत्र समृद्धि, मो सरकार, मो परिवार, मो कल्याण, मो जीवन, मो प्रतिभा, ये सारी स्कीम्स कित्थे दियां ने? उड़ीसा स्टेट गौरमेंट दियां ने। इस तो इलावा उड़ीसा ने 3 मैगा एजुकेशनल ट्राइबल कंपलैक्स बनाने की गल की थी बिल्कुल रिसेंटली। सन टैंपल कित्थे है? कोणार्क उड़ीसा दे विच, कोणार्क उड़ीसा दे विच है और इसकी 100% सोलरिफिकेशन के लिए एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया गया सी, याद रखना। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए MP बारे, MP कुछ ना कुछ करके डेली न्यूज़ के चल रहा है। अगर आप गल करिए दीदी व्हीकल कैंपेन की, चरण पादुका कैंपेन, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार योजना। इस तो इलावा हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च की गई सी। किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया सी MP गौरमेंट द्वारा, ये याद रखने ने। गुजरात वहीली डिक्री योजना कित्थे दी है? गुजरात स्टेट गौरमेंट दी है, ये याद रखनी है। राजस्थान बारे की डिस्कस कर सकते हैं आप। राजस्थान बारे राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च की थी राजस्थान गौरमेंट ने। इस तो इलावा राजस्थान ने कोविड-19 की रैंकिंग के कोविड-19 टैकल करने के लिए 10 स्टेट्स की एक रैंकिंग रिलीज़ की गई सी जिसनों टॉप किया सी राजस्थान ने, ये याद रखने ने। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड इन फिश प्रोडक्शन इन द ईयर 2019। अगर आप कुछ टाइम पहले की गल करिए, आप न्यूज़ डिस्कस की थी फ्रूट्स प्रोडक्शन के स्टेट ने टॉप किया सी। दूसरी डिस्कस की थी वैजीटेबल प्रोडक्शन के स्टेट ने टॉप किया सी। हुण लिस्ट जारी की गई कि फिश प्रोडक्शन के स्टेट ने टॉप किया। सब तो पहले फ्रूट्स के किसने टॉप किया सी? आंध्र प्रदेश ने, ये याद रखने। वैजीटेबल के टॉप किया सी वैस्ट बंगाल ने, ये याद रखने। और फिश के टॉप किया गया, फिश के टॉप किया तमिलनाडु ने। फिश के स्टेट ने टॉप किया है? तमिलनाडु ने, ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर तमिलनाडु से रिलेटेड कोई न्यूज़ डिस्कस करिए, तमिलनाडु बहुत ज़्यादा घट न्यूज़ के चल रहा है, पर नेथरा नाम की एक लड़की, मदुराई लड़की, नेथरा तमिलनाडु तो बिलोंग करते सी। इन्हों यूनाइटेड नेशन के एक ऑफिस द्वारा गुडविल एंबेसडर टू द पुअर इस द एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी नेथरा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए तमिलनाडु तो
कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई इसनूं GI टैग दिता गया सी, GI टैग दिता गया सी कोविलपट्टी कदलाई मिठाई नूं। इस तो इलावा होर GI टैग दो चीज़ों होर दिते गए सी, कमेंट बॉक्स दे विच हो सके तो उसका आंसर देने। तेलंगाना दे विच तेलई रुमाल नूं GI टैग दिता गया सी, ये याद रखना है। गोवा की गल करिए, गोवा के बारे हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं। प्रमोद सावंत इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। गोवा ऐसी स्टेट बनी सी जिसने कहा सी कोविड-19 सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया सी अगर तुसी स्टेट दे विच एंट्री लैनी है। आंध्र प्रदेश YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया सी आंध्र प्रदेश द्वारा। इस तो इलावा नेतनम नेस्टम नाडू नेडू स्कीम, लॉ नेस्टम स्कीम, ये सारी स्कीम्स कितने लॉन्च की गई सी आंध्र प्रदेश द्वारा। जगन्नाथ चेदोदू स्कीम, मत्स्यकरा भरोसा स्कीम सारिया आंध्र प्रदेश दियां ने। आंध्र प्रदेश, MP, कुछ ऐसी स्टेट्स ने या UP कह सकते हैं, ये तीन ऐसी स्टेट्स ने जिथे डेली कोई ना कोई नवी योजना लॉन्च की जा रही है और अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगी एग्जाम के लिए। तेलंगाना तेलई रुमाल आप डिस्कस कर चुके हैं। इस तो इलावा हैदराबाद दे विच, तेलंगाना के हैदराबाद दे विच वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर ओपन किया गया सी। वेस्ट बंगाल द्वारा अगर आप गल करिए, वेस्ट बंगाल बंगाश्री और शाह सुंदरी, ये दो स्कीम्स याद रखने ने, बंगाश्री और शाह सुंदरी। मातृ समिष्टि इस तरीके की स्कीम भी लॉन्च की गई सी वेस्ट बंगाल द्वारा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड मिशन वृक्षारोपण मिशन वृक्षारोपण। बेसिकली अगर प्लांट्स की गल की गई इत्थे कि 25 करोड़ प्लांट्स लगाए गए एक सिंगल डे दे विच, एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने द्वारा, इस स्टेट द्वारा। हर साल वैसे बेसिकली इन्होंने द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्लांट किए जा रहे हैं 2018, 2019 और 2020 की। 2020 दे विच इन्होंने 25 करोड़ प्लांट लगाए बेसिकली उत्तर प्रदेश। अपना आंसर होएगा उत्तर प्रदेश दे विच यह प्लांट लगाए गए, याद रखने ने। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल इत्थे दे गवर्नर ने। आनंदीबेन पटेल नूं रिसेंटली MP का गवर्नर भी बनाया गया, एज ए एडिशनल चार्ज दिता गया MP का। इस तो इलावा MP द्वारा हर्बल रोड्स 800 किलोमीटर की हर्बल रोड अनाउंस की गई सी, ये याद रखना है। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी उत्तर प्रदेश दे विच। एक न्यूज़ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड डिस्कस कर लें। हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है जिसने LPG दे लई कनैक्शन प्रोवाइड करवा चुकी है हर एक परसन नूं, एवरी हाउस होल्ड। फर्स्ट स्टेट टू हैव LPG गैस कनैक्शन टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द स्टेट। हर एक हाउस होल्ड नूं LPG गैस कनैक्शन दिता जा चुका है। हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है, ये याद रखना है। इस तो इलावा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। बिहार जरदालू मैंगो और शाही लीची दे लई, जरदालू मैंगो और शाही लीची नूं होम टू होम ट्रांसफर करवाने दे लई, डिलीवरी करवाने दे लई बिहार गौरमेंट ने इंडियन गौरमेंट दे नाल एग्रीमेंट साइन किया सी। सिमिलर तरीके का एग्रीमेंट अगर मैंगो की गल करिए, मैंगो के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी कर्नाटका स्टेट गौरमेंट ने फ्लिपकार्ट के नाल, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च वीवर्स सम्मान योजना। वीवर्स सम्मान योजना केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वीवर्स सम्मान योजना लॉन्च की गई, अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2000 टू बी गिवन टू अराउंड 19,744 हैंडलूम वीवर्स। बेसिकली एक सिंपल जी स्कीम लॉन्च की गई है। अपने जो चीज़ याद रखनी है कि वीवर सम्मान योजना, इस दे अंडर जो वीवर्स होंगे ने, जुलाहे होंगे ने, उन्होंने 2000 रुपये दिते जाएंगे। किन्ने जुलाहियां नूं? 19,744 जुलाहियां नूं इस स्कीम के अंदर दिते जाएंगे। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई है? कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई है? कर्नाटक द्वारा, ये याद रखने। इस तो इलावा रिसेंटली मेघा संदेशा एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी कर्नाटक द्वारा। मेघा संदेशा एप्लीकेशन कित्थे लॉन्च की गई सी? कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। केरला की गल करिए, कोविड-19 का पहला केस केरला दे विच ही पाया गया सी इंडिया दे विच, और कोविड-19 की पहली डेथ कर्नाटक दे विच हुई सी, ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, कोविड-19 कर्व नूं फ्लैटन करने वाली फर्स्ट स्टेट बनी सी केरला। केरला द्वारा
नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन लॉन्च किया गया सी करनाटक द्वारा और केरला द्वारा ब्रेक द चेन इनीशिएटिव लॉन्च किया गया सी। केरला बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ के शैलजा करके के शैलजा केरला ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19। असम की गल करिए, असम के गुवाहाटी ਦੇ ਵਿੱਚ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3rd एडिशन हैल्ड किया गया सी, जिस दे विच मैडल टैली नूं टॉप किया सी महाराष्ट्र ने। मैडल टैली नूं टॉप किया सी महाराष्ट्र ने, 2nd प्लेस ते हरियाणा और 3rd प्लेस ते न्यू दिल्ली रहा सी। महाराष्ट्र ने 256 मैडल्स जिते सी। नैक्सट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की गल करिए, त्रिपुरा ने रिसेंटली एक तू खेलो एक तू पढ़ो, एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम लॉन्च की सी। इस तो इलावा त्रिपुरा द्वारा इस गल करिए नागालैंड फैसटिवल, सॉरी नागालैंड नहीं, हॉर्नबिल फैसटिवल त्रिपुरा द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया सी। मिजोरम की गल करिए, चपचार कूथ फैसटिवल मिजोरम के विच ऑर्गेनाइज किया गया सी। नैक्सट है इंडिया हैज़ साइंड 5 एग्रीमेंट्स। इंडिया ने 5 एग्रीमेंट साइन किए किस दे लई, टू डेवलप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच कंट्री, किहड़ी कंट्री दे विच एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नूं डेवलप करन दे लई 5 एग्रीमेंट साइन किए इंडिया ने। इस एग्रीमेंट्स को साइन किया गया अफगानिस्तान के नाल। अफगानिस्तान के नाल ये एग्रीमेंट साइन किए गए जिस दे अंडर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के रिलेटेड अगर आप डिस्कस करिए, रिसेंटली अपने वीट के रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट साइन किया कि इंडिया वीट प्रोवाइड करेगी, कणक प्रोवाइड करेगी अफगानिस्तान और एक होर कंट्री लैबानोन नूं। डेनमार्क के नाल इंडिया ने पावर के लिए एग्रीमेंट साइन किया। भूटान के नाल इंडिया ने इन्वायरमेंट के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया और दूसरा एग्रीमेंट साइन किया कि इत्थे एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट बनाएगा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया लॉजिस्टिक्स के लिए, यानी कि आर्मी, बेसिकली 9 एग्रीमेंट्स ऑस्ट्रेलिया नाल साइन किए गए सी। प्राइम मिनिस्टर इत्थे दे स्कॉट मॉरिसन ने इत्थे की किया गया कि किस दे लई लॉजिस्टिक, बेसिकली सब तो इंपोर्टेंट एग्रीमेंट सीगा लॉजिस्टिक, यानी कि अगर वॉर छिड़ती है तो ये दोनों कंट्रीज एक दूजे की हेल्प करनी है विद आर्मी, विद खान पीन का समान एक्सैक्ट्रा, जिहड़ी भी चीज़ों की जरूरत पेगी ये दोनों कंट्रीज किसी भी अगर कंट्री की वॉर छिड़ती है तो उसके नाल हेल्पफुल रहेगी। इस तो इलावा एक न्यूज़ आप इंडोनेशिया के रिलेटेड डिस्कस कर लें। इंडोनेशिया के नाल एक एग्रीमेंट साइन किया गया बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसके हैड ने के नटराजन, दिल्ली के हैडकुआटर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के नाल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के नाल एग्रीमेंट साइन किया। किस दे लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, मैरीटाइम रिलेशंस के लिए, MOU साइन किया मैरीटाइम रिलेशंस के लिए। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स स्पाई सैटेलाइट OFAC 16 यूजिंग रॉकेट शेवेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि स्पाई सैटेलाइट एक होंगी सिंपल सैटेलाइट, अगर आप गल करिए एक नैविगेशन सैटेलाइट्स होंदियां ने, नैविगेशन के यूज़ के लिए जियो सिंक्रो सैटेलाइट्स होंदियां ने, अलग अलग सैटेलाइट का अलग अलग तरीके नाल यूज़ किया जाता है। एक स्पाई सैटेलाइट डिफरेंट कंट्रीज़ के उत्ते स्पाई करने के लिए एक सैटेलाइट OFAC 16 नूं लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम याद रखना है शेविट रॉकेट दे विच किहड़ी कंट्री द्वारा, इजराइल द्वारा स्पाई सैटेलाइट OFAC नूं लॉन्च किया गया। रिसेंटली इजराइल तो अपने LMG गन्स बोरो कीतियां सीगियां इजराइल तो। इस तो इलावा स्पाइक मिसाइल लॉन्च अपने बोरो की हुई है इजराइल तो, जिसका अपने टेस्ट किया सी मोहो MP दे विच, मोहो मध्य प्रदेश के अपने टेस्ट की स्पाइक मिसाइल। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एक वियतनाम के रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर लें। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनीक न्यूज़ है वियतनाम के रिलेटेड। वियतनाम ने की करा एक होटल डेवलप किया है जिहड़ा कि फुली गोल्ड का बनया हुआ है, पूरे तरीके नाल एक गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया वियतनाम दे विच। वियतनाम कैपिटल हनोई है। वियतनाम की कैपिटल की है हनोई। वियतनाम के बारे याद रखना है 36th एशियन समिट कितने हैल्ड किया जाएगा, वियतनाम के। यूके गल कर लें, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फाइनैंस मिनिस्टर डिस्कस कर लेना। यूके के अपने लिए इंपोर्टेंट बन गए ऋषि सुनक, इंडियन पर्सन ने ऋषि सुनक यूके के फाइनैंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे, ये याद रखने ने। चाइना के बारे एक न्यूज़ आप कल डिस्कस करके हटे हैं लिन डैम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक
हैज़ लॉन्च लोन इन सेकंड्स स्कीम नूं किहड़े बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट्स ऑफ रूरल लोन। काफ़ी अच्छे तरीके का इनिशिएटिव कि बेसिकली अगर आप किसी बैंक तो लोन लैंदे आ तो की होंदा कि कदे एक फॉर्म भराया जाता है, फिर दूसरा फॉर्म भराया जाता है, फिर उसते कोई साइन, फिर उसते कोई साइन, इस तरीके नाल काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपन एक लोन लैन दे लई। पर इस बैंक द्वारा लोन इन सैकेंड्स एक स्कीम लॉन्च की गई, लोन इन सैकेंड्स, जिसके अंडर काफ़ी ईजिली तरीके नाल और एक ईजी वे दे नाल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किहड़े बैंक द्वारा? यस बैंक द्वारा। किहड़े बैंक ने शुरू किया है? यस बैंक ने। यस बैंक का हैडकुआटर मुंबई के विच है और इसके हैड ने प्रशांत कुमार। SBI के हैड CEO कौन ने? रजनीश कुमार। ICICI बैंक की गल करते हैं। ICICI बैंक ने की किया सीगा रिसेंटली? ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लैक्सी लोन इस तरीके की इनिशिएटिव लॉन्च किया ICICI बैंक ने। दूसरा ICICI बैंक ने WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाली पहली बैंक बनी सी ICICI बैंक। HDFC समर ट्रीट्स कैंपेन HDFC बैंक द्वारा। इस तो इलावा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग HDFC बैंक द्वारा रिलीज़ किया गया, जिसका म्यूजिक दिता सी AR रहमान ने और लिरिक्स दिते सी प्रसून जोशी द्वारा। HDFC बैंक रिलेटेड एक होर न्यूज़ डिस्कस कर लें। HDFC बैंक ने एक कार लोन प्रोवाइड कराने के लिए एक जिप ड्राइव इनिशिएटिव लॉन्च शुरू किया है। HDFC बैंक ने ईजिली कार लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। एग्जिम बैंक ने 2 कंट्रीज़ में रिसेंटली लोन दिता सीगा। दोनों कंट्रीज़ के नाम इंपोर्टेंट बन गए अपने लिए। किहड़ी कंट्रीज़? एक तो मलावी और दूसरी निकारागुआ। ठीक है जी। नैक्सट है इन विच IIT केड़ी IIT दे विच DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की काफ़ी इंपोर्टेंट और अगर आप गल करिए डिफेंस सैक्टर दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस द्वारा एक एस्टैबलिश किया जाएगा रिसर्च सैल टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टैक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। कि अगर फ्यूचर दे विच इंडिया नूं कोई डिफेंस टैक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ने, डिफेंस के रिलेटेड कोई टैक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई अगर आप हथियार वगैरह की रिक्वायरमेंट्स ने तो उन्होंने लिए की करेगा कि रिसर्च सैल डेवलप करेगा। रिसर्च सैल किहड़ी IIT दे विच डेवलप करेगा? ये डेवलप करेगा IIT हैदराबाद दे विच। IIT हैदराबाद दे विच एक रिसर्च सैल बनाया जाएगा DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 दे विच 1 जनवरी 1958 दे विच DRDO बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और G सतीश रेड्डी इज़ द चेयरमैन ने। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए IIT गुवाहाटी के बारे। IIT गुवाहाटी द्वारा रिसेंटली फ्लाईजी एप्लीकेशन, मोबाइल फ्लाईजी एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT रुड़की द्वारा वेंटीलेटर्स लॉन्च किए गए सी। बेसिकली ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अगर आप गल करिए मार्च या अप्रैल की न्यूज़ है ये अपन काफ़ी टाइम हो चुका है, इस बारे डिस्कस नहीं किया, इस करके रिवीजन और दोबारा कर रहे हैं। वेंटीलेटर्स लॉन्च किए गए सी IIT रुड़की ने एम्स के नाल मिलके IIT रुड़की ने वेंटीलेटर्स लॉन्च किए सी। वेंटीलेटर्स का नाम की रखा गया सी, तुसी कमेंट बॉक्स में दसोगे। ठीक है। और वेंटीलेटर्स ही लॉन्च किए गए सी पंजाब की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने। उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में दसना कि उस वेंटीलेटर का की नाम रखा गया सी। ठीक है जी। नैक्सट है IIT गांधीनगर ने प्रोजैक्ट आईसैक लॉन्च किया सी। स्टूडेंट्स नूं डिफरेंट अगर कह सकते हैं इनिशिएटिव्स दे विच एंगेज करने के लिए, वर्क दे विच एंगेज करने के लिए प्रोजैक्ट आईसैक न्यूटन आईसैक के नाम देते प्रोजैक्ट आईसैक IIT गांधीनगर द्वारा लॉन्च किया गया सी। IIT बॉम्बे द्वारा एक डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया गया सीगा जिसका नाम रखा गया सी अईस सिंक। ये याद रखना। नैक्सट है इंडियन रेलवे द्वारा कोलैबोरेशन की गई केड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाल टू सैटअप अ 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन MP बीना। MP से रिलेटेड एक सोलर पावर प्लांट आप हुणे डिस्कस करके हटिया, रेवा डिस्ट्रिक्ट के विच बनाया जाएगा। दूसरा MP दे बीना दे विच 1.7 मेगावाट का 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट
इंडियन रेलवे बना रही है, इंडियन रेलवे किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाल मिल के बना रही है ताकि वह नैट जीरो कार्बन एमीटर बन सके। किस नाल बना रही है? बेसिकली सब तो पहले ये डिस्कस कर लेने कि नैट जीरो कार्बन एमीटर होने का टारगेट कितना है, 2030 का टारगेट है और ये SDG इंडेक्स के विचों एक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे विचों एक है अपना टारगेट 2030 का। ठीक है जी, SDG रिलेटेड भी एक न्यूज़ डिस्कस करांगे अगे। भेल, अपना आंसर रहेगा भेल, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडिया की नवरत्न के विचों एक है। 9 ऐसी कंपनीज जिहड़ी कि इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंदियां ने, नवरत्न कहा जाता है उन्होंने, उन्होंने विचों एक है भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड। DRDO बारे आप हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसरो बारे डिस्कस कर लेने। इसरो बनाया गया 15 अगस्त 1969 ਨੂੰ, 15 अगस्त 1969 ਨੂੰ इसरो बनाया गया सी। बेंगलुरु कर्नाटका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ और इसरो ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ K Sivan, इंडिया की स्पेस एजेंसी K Sivan ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। इसरो ਜਿਹੜਾ मिशन भेज रहा गगनयान मिशन, उसका टारगेट रखा गया 2023 और जिस दे ਲਈ इंडिया 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ही की भेजेगा, रोबोट भेजेगा। एक रोबोट नू एज ए कह सकते मैंड मिशन तो पहले एक चैकिंग के लिए भेजा जाएगा। रोबोट का नाम होएगा व्योम मित्र, व्योम मित्र, ये भी याद रखना। CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इस द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप की गई सी। एक इस न्यूज़ सी कि इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की सी, किसान सभा, किसान सभा एप्लीकेशन CISR द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट इन 2019 एज पर यूनाइटेड नेशंस द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। एक इंडेक्स जारी किया गया कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसके हैड ने एंटोनियो गुटरस। एंटोनियो गुटरस यूनाइटेड नेशंस के हैड ने, न्यूयॉर्क के विच हैडकुआटर है। इन्हों द्वारा कि ग्लोबल ई वेस्ट की एक रैंकिंग रिलीज़ की गई कि किहड़ी कंट्री कितना ई वेस्ट हर साल प्रोड्यूस करती है। तो सब तो ज़्यादा इस टॉप किया गया चाइना द्वारा, यानी कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जी सब तो ज़्यादा वर्ल्ड के प्रोड्यूस करती है ई वेस्ट की चीज़ां होंदियां ने। अगर आप गल करिए अपना मोबाइल हो गया, कोई भी अगर आप टैक्नीकल चीज़ होगी जी, अगर जो खराब हो जाती है आप उसको सुट दें तो जी सुटन के नाल जो वेस्ट होंदा ई वेस्ट कहलाया जाता है। सिंपल वेस्ट होंदा है और जो इलैक्ट्रोनिक्स के रिलेटेड वेस्ट होंदा है उसको ई वेस्ट कहते हैं। सब तो ज़्यादा ई वेस्ट किहड़ी कंट्री प्रोड्यूस करती है? चाइना। सैकेंड नंबर पर इस लिस्ट के USA रहा और थर्ड प्लेस पर इंडिया सीगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया तो सिंपल वेस्ट ही अपने तो सामभ्या नहीं जा रहा। और अगर ई वेस्ट की गल करिए इस भी आप तीसरे नंबर पर एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए USA के डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट ने प्रेजिडेंशियल इलैक्शन इतने हैल्ड किए जाने ने। और डोनाल्ड ट्रंप की गल करिए रिपब्लिक पार्टी तो ये की कहते इलैक्शन लड़ते हैं। इन्हों की जी राइवल पार्टी होंगी है उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी तो इस साल के प्रेजिडेंशियल इलैक्शन के लिए किसनों अपॉइंट किया गया? जो बिडन प्रेजिडेंशियल नॉमिनी इलैक्ट किए गए हैं USA के फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी के हैड ने चांसलर ने एंजेला मार्कल जर्मनी के हैड ने। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया का ह्यूमन राइट्स कमीशन है जोड़ा उसके द्वारा एक 11 मैंबर कमेटी बनाएगी। 11 मैंबर कमेटी बनाएगी किस दे लई? टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन राइट्स। COVID-19 का जोड़ा इंपैक्ट पिया ह्यूमन राइट्स के उत्ते। ह्यूमन राइट्स अगर आप गल करिए कि परसन के राइट्स होंगे ने उसके उत्ते अगर COVID-19 का जोड़ा इफैक्ट पिया उसनूं स्टडी करने के लिए 11 मैंबर की एक कमेटी बनाई गई NHRC द्वारा, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा। इस कमेटी के हैड कौन होंगे? इस कमेटी के हैड होंगे KS रेड्डी इस कमेटी के हैड होंगे। ठीक है जी। इस तो इलावा HL दत्तू की गल करिए, जस्टिस HL दत्तू फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं। ये अगर आप गल करिए सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं HL दत्तू। इन्होंने द्वारा काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी रिलीज़ किए गए हैं लॉ के रिलेटेड।
और ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਸਟਿਸ HL ਦੱਤੂ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ, ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਔਰ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, उसकी कमेटी ਨੂੰ हैड किया गया ਸੀ ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ द्वारा। अनिल खुंबले एक कमेटी के हैड रहे सी ICC द्वारा बनाई गई सी। ICC द्वारा एक कमेटी बनाई गई सी जिसने सैलीवा का यूज़ बैन किया सी। सैलीवा का बॉल नू शाइन करने के लिए क्रिकेट के जिहड़ा सैलीवा का यूज़ किया जाता सी उसनू बैन किया सी। ICC द्वारा एक कमेटी बनाई गई सी, उस कमेटी नू हैड किया सी अनिल खुंबले द्वारा। जी कृष्णा रेड्डी बेसिकली डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने, सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने। यह एक कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए थे, इन्हों द्वारा कमेटी हैड की गई थी फायर फाइटर के वैलफेयर के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को हैड किया जी कृष्णा रेड्डी द्वारा उस कमेटी को हैड किया गया सी। नैक्सट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स द्वारा इंडेक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग रही है 117। इंडिया किनवें रैंक पे है? 117वें रैंक पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे विच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स ने जिन्हों का टारगेट रखा गया कि 2030 तक इन्हों ਆਪਾਂ ने अचीव करना है हर एक कंट्री द्वारा। तो इंडिया की जी इस टाइम रैंकिंग है 117वें रैंक के उत्ते है इंडिया। इस इंडैक्स नू टॉप किया गया स्वीडन द्वारा। किहड़ी कंट्री द्वारा इस इंडैक्स नू टॉप किया गया? स्वीडन द्वारा। सैकेंड प्लेस ते कंट्री रही डेनमार्क, और थर्ड प्लेस ते फिनलैंड थर्ड प्लेस ते रही। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम। डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। फिनलैंड कैपिटल की है? फिनलैंड कैपिटल है हेलसिंकी। ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए एक रैंकिंग होर डिस्कस कर लें 31 एक इंडैक्स होर रिलीज़ किया गया इन्फॉर्म रिस्क इंडैक्स। बेसिकली जिहड़ा इंडैक्स है 2020 का, इस दे विच की दस्सिया जांदा है कि किहड़ी कंट्री क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट नूं लैके कितनी सुटेबल है, कितनी उसनूं साम सकती है। तो इंडिया का उस दे विच 31 रैंक है। इसनूं यूरोपीयन यूनीयन द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इंडिया का रैंक कितना है? 31। इस रैंक के विच टॉप ते रही है सोमालिया, यानी कि सोमालिया वर्स्ट कंट्री है डिजास्टर नूं सामभण दे विच, ठीक है। और इंडिया कितनी वर्स्ट है? 31 है। इस तो इलावा 63 रैंक इंडिया का रहा सी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दे विच। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दे विच इंडिया का रैंक रहा सी 63। इस रैंकिंग नूं वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया जाता है और टॉप किया गया सी न्यूजीलैंड द्वारा। इस रैंकिंग नूं टॉप किया गया सी न्यूजीलैंड द्वारा। 76 रैंक इंडिया का 76 रैंक रहा सीगा सोशल मोबिलिटी इंडैक्स दे विच। सोशल मोबिलिटी इंडैक्स 2020 इंडिया रैंक 76 और टॉप किया गया डेनमार्क द्वारा। इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया सी डेनमार्क द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडैक्स की गल करिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडैक्स 142 रैंक रहा सी इंडिया का। इस रैंक नूं टॉप किया गया सी नॉर्वे कंट्री द्वारा। 142 रैंक इंडिया का रहा सी और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडैक्स नूं टॉप किया सी नॉर्वे ने। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।